टी कोलिन जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के सीनियर साइंस एडवाइजर हैं, उनसे पूछा गया कि अगर कभी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए उनका जवाब। If I or some member of my family were diagnosed with cancer, what I would do is not what is traditionally done. I would not go the route of using drugs. Instead, I would use a plant-based diet, maybe enrich it with some other materials that is particularly rich in some of the good qualities of plant-based foods, and make sure you get enough water, exercise, sunshine, and I would just let nature take its course. शायद उनको पता है कि कीमोथेरेपी की शुरुआत कैसे हुई थी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान मस्टर्ड गैस वॉज यूज्ड बाय हिटलर to kill more than 60 lakh Jews. After that, Nazi scientist who has understood the effect of mustard gas on human body in association with American politicians and the big pharma companies designed chemotherapy empire. कीमोथेरेपी दरअसल उन बेहद आवश्यक वाइट ब्लड सेल्स को खत्म करती है जो कि हमारे बॉडी की बीमारियों से रक्षा करती है। अब देखिए कैंसर का कुछ और सत्य। World Health Organization says 3% of the cancer burden in the world is because of the diagnostic X-rays. यानी कि एक्सरे कराना आपके लिए खतरनाक है। एक्सरे may lead to cancer. Similarly, mammography यानी कि breast cancer screening increases the chances of breast cancer. Harvard Medical School says 3 times biopsy increases the cancer risk by 62%. कैंसर यूं ही किसी को अपने आप ही नहीं हो जाता, बल्कि अक्सर हॉस्पिटल्स के मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और फास्ट फूड में छुपे हुए केमिकल्स के माध्यम से बॉडी में कैंसर को एक षड्यंत्र के तहत प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि आपके बीमार पड़ने से कुछ लोगों को बेहद लाभ है। हार्ट सर्जरी का भी कुछ ऐसा ही है। चाइना स्टडी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है न्यूट्रिशन पे, उसके अनुसार within 3 years of bypass surgery, 1/3 of the patients suffer from chest pain again. The patient who undergo operation do not have fewer heart attack than those who do not undergo surgery. Bypass surgery and angioplasty do not address the cause of the heart disease, prevent heart attack, or extend the life of any but the sickest heart disease patients. To understand the economics of the disease, consider this. WHO report says India will lose roughly 120 lakh crore rupees in next 10 years because of the lifestyle disease. World Bank says every year in India, on average 8 lakh people go below poverty line because of lifestyle diseases. Among lower income group, the treatment of diabetes consumes 1/3 of their income. National Health Account says 1 in 4 families either sell assets or borrow money to pay for health care. अब सवाल यह कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ पे है, इसको समझने के लिए आप जरा इस आंकड़े पे गौर करें। फॉर्च्यून मैगजीन्स के अनुसार वर्ल्ड्स नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, दैट इज हेल्थ केयर। 4 out of top 10 fastest growing company, again that is healthcare. Actually, it is not the business of health, it is the business of disease. एक क्विज। ब्रिटिश मेयर स्क्वीप, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कीमो ड्रग्स है, एक और कंपनी फिलिप मॉरिस, जो लार्जेस्ट टोबैको सेलिंग कंपनी है। अब जरा सोचिए, बताइए इन दोनों कंपनीज में कॉमन क्या है? Yes, one is producing cancer, another is trying to cure cancer. इसके अलावा one more thing is common between these two companies, and that is one name called Richard L. Glib. Richard L. Glib, who is the chairman of the first company and has a share interest in the second company. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बात 1964 की है। कैलिफोर्निया मेडिकल एसोसिएशन के दो डॉक्टर मैकडोनल्ड एंड डॉक्टर गार्लैंड, दोनों ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि 24 सिगरेट्स अ डे कीप्स अ लंग्स कैंसर अवे। वो यही प्रचलित कर रहे थे कि अगर आपको लंग्स कैंसर से बचना है तो दिन में कम से कम आपको 24 सिगरेट पीना होगा। और उन्होंने खुद अपने आप को दिखाया कि हम जीता जागता सबूत हैं कि हम रोज़ सिगरेट पीते हैं और दिन में कई सिगरेट पी जाते हैं, तब भी हम हेल्दी हैं, हमें कैंसर नहीं है। कुदरत का खेल देखिए, डॉक्टर मैकडोनल्ड की देहांत घर में आग लगने से हुई, जो कि जले हुए सिगरेट के रह जाने से हुई, और कुछ साल बाद डॉक्टर गार्लैंड लंग कैंसर से मारे गए। और उनके मरने के बाद 24 सिगरेट्स अ डे कीप लंग कैंसर अवे का भी खात्मा हो गया। 1940 में यह FDA द्वारा अप्रूव्ड एडवर्टाइजमेंट, जिससे यह साफ है कि स्मोकिंग डाइजेशन के लिए लाभदायक है। या फिर यह एड जिसमें अच्छे डॉक्टर को स्मोकिंग से जोड़ा गया है, या फिर इस एड में अच्छे मदर को स्मोकिंग से एसोसिएट किया गया है।
इन सारे मेडिसिन और फास्ट फूड के षड्यंत्र का नतीजा यह है कि आज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में 10 में से 8 डेथ लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज की वजह से है, जो कि पूर्ण तरह से मानव निर्मित है। According to WHO, by 2080, 1 in every 4 males will have prostate cancer and 1 in 5 females will have breast cancer. नेशनल कमीशन ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड हेल्थ के अनुसार इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर प्रोजेक्टेड टू एफ्लिक्ट ओवर 6 करोड़ पीपल इन 2015 and similarly people suffering from diabetes is expected to rise to 4.6 crore in 2015. यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशन की रैंकिंग, इंडिया इज एट 126th पोजीशन आउट ऑफ 177 कंट्रीज, यानी कि मामला बेहद गंभीर है। मामले की गंभीरता को अंडरस्टैंड करने के लिए इस उदाहरण पर गौर करें। 7 अगस्त 2011 में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स के प्रमोशन के लिए एक 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जो कि 90 मिनट्स में पूरा करना था। इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 7.5 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब अगर आप पैदल भी चलें तो भी 90 मिनट्स में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर सकते हैं। दौड़ का नतीजा यह कि लगभग 1000 से अधिक कांस्टेबल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेस में, 100 से अधिक दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गए और 5 कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। यानी कि सेहत इतनी खराब कि चलना भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। उस दौड़ में केवल 40 कांस्टेबल्स 10 किलोमीटर रेस पूरा कर पाए। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक और कांस्टेबल अभिजीत बरुआ, जो कि असम पुलिस में कार्यरत हैं। 31 जनवरी 2012 में नंगे पांव 24 घंटे बिना रुके दौड़कर 156 किलोमीटर कवर करने का रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जब अभिजीत बरुआ मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए तब मैंने पूछा 24 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे सीक्रेट क्या है। अभिजीत के जवाब से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह वही जवाब था जो मैं पहले भी सुन चुका था उन लोगों से जिन्होंने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए, और वह भी बिना किसी बीमारी के। अभी आपने पप्पू के जिंदगी के माध्यम से जाना एक भयानक सच जो कि मानव जाति को अंदर से खोखला करता जा रहा है। अब बारी है समझने की कि अगर हम किसी जानलेवा बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस या ओबेसिटी से पीड़ित हैं, तो हम कैसे नेचर की शक्ति को यूज करके किसी भी डिजीज से मुक्ति पाएं। जरा सोचिए और बताइए, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ राइट बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड एनवायरमेंट। और अगर इन तीनों में से एक भी अगर आउट ऑफ बैलेंस होता है तो बाकी दोनों भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। याद रखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमारा माइंड, बॉडी एंड आवर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, दैट इज द एनवायरमेंट, तीनों ही बीमार पड़ जाते हैं। जबकि एक मॉडर्न डॉक्टर सिर्फ बॉडी का ही रिपेयर करने की कोशिश करता है। माइंड, बॉडी और एनवायरमेंट के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की यह वीडियो। Each cell has a brain. That's a fact. Each cell can read the environment and adjust its function for whatever it sees. But when cells get in a community, they defer their own belief system or their own system of what they're seeing to the central command. So as you can see here, I have a cell here on the right-hand side, marked in purple over here, that this cell is out here in the environment. But what should its function be? Well, the answer is it's going to be coordinated by the brain, because the brain is going to tell all the cells what we should do to work together to, provide for the success of my living organism. So the brain gets in between the environment and the cell. The cell no longer reads its own environment. The cell depends on the central nervous system to tell us about the environment. So the bottom line is this. The cell on the right is intelligent. It will always be able to adjust itself to the environment. That's when I was taking cells out of sick people and putting them in culture, they started to get better, because when left alone, they could say, man, I could live comfortably alone without being in that system anymore. And then, so the fact is, so what regulates a cell now? When it's in a community, the cell reads the environment, which is the left side, but it doesn't read it directly. It now reads the environment through the brain, and the brain interprets the environment and then tells the cell what adjustment it should do to live in the environment that is seen. अब आप समझ गए होंगे
कि लॉन्ग टर्म डिजीज को जड़ से निकालने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपकी यह सोच सेल के मेमोरी में रिकॉर्ड होगी। याद रखिए, सेल्स में हर पल हजारों केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनमें से मेनी ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय द मेमोरी ऑफ सेल्स, और मेमोरी ऑफ सेल्स निर्भर करती हैं आपकी बेसिक सोच और सोच को कंट्रोल करने वाला आसपास का एनवायरनमेंट। जरा सोचिए, एक बीपी का पेशेंट रोज दिन में कई बार जब बीपी की गोली खाता है तब इन रियलिटी सेल मेमोरी में यह रीइंफोर्स करता है कि उसके शरीर के ब्लड का फ्लो कैसा होना चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वह लाइफ लॉन्ग बीपी का पेशेंट ही रहता है। और इस प्रकार हर पल ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक थॉट्स ऑफ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ आपके बॉडी के 50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स के मेमोरी फीड होती है, जिससे आपके बॉडी के सैकड़ों बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल होते हैं। बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन 50 ट्रिलियन सेल में से 90% ऑफ योर बॉडी सेल्स आर माइक्रोब्स एंड 10% इज योर ओन सेल। माइक्रोब्स अपने आप में कंप्लीट जीव होते हैं और वह आपके शरीर में वैसे ही रहते हैं जैसे आप इस धरती पर। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने बॉडी के अंदर झांकें तो माइक्रोब्स आपको तैरते दिखाई देंगे। Invisible to the naked eye, they account for the majority of Earth's biomass. For at least 3.5 billion years, they have dominated the evolution of life. So diverse in form and distribution, they are Earth's most ubiquitous life forms, carving out niches in ecosystems ranging from the vastness of the open sea to the digestive tract of a termite. And yet, only 1% of them are known to science. They are the microbes, and without them, life as we experience it would soon come to an end. In fact, it would never have begun at all. Continuous negative thoughts, fast food and medicines के सेवन से अक्सर डैमेज सेलुलर लेवल पर होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता है। सेल्स के अंदर के फॉल्टी केमिकल रिएक्शंस को मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपके घर में मच्छर हो और आप उसे मारने के लिए मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करें। क्या मॉडर्न मेडिसिन हार्मफुल कैंसरस सेल को मार सकती है? यह सवाल पूछना कुछ ऐसा ही होगा कि क्या मिसाइल मच्छर को मार सकती है? हाँ, मार तो सकती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर हाउस। साइंस आज भी यह मानता है कि अभी भी 1% से भी कम ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जान पाए हैं। इसलिए ह्यूमन बॉडी के सेलुलर डिसऑर्डर को करेक्ट करने का काम अगर हम नेचर पर ही छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। What is that one thing which can save the mankind from the disease? And the answer is nature. देखिए चाइना स्टडी का यह अमेजिंग रिपोर्ट। यह कहानी है दो सिविलाइजेशन की। एक का नाम है हुंजा जो कि कश्मीर के पास रहते हैं और दूसरा सिविलाइजेशन है पीमा इंडियंस जो कि एरिजोना में जाकर बस गए थे। दोनों ही सिविलाइजेशन दुनिया के हेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन माने जाते थे और दोनों का रहन सहन और फूडिंग हैबिट भी एक ही जैसी थी। दोनों सिविलाइजेशन में यह देखा गया कि उनके टोटल डाइट का 90% हिस्सा प्लांट बेस्ड रॉ डाइट ही था, यानी कि अधिकतर भोजन फल और कच्चा या थोड़ा उबला सब्जी ही होता था। नमक ना के बराबर और चीनी बिल्कुल कम। और इन दोनों सिविलाइजेशन में लोग अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते थे और उन्हें कभी लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा नहीं होता था। आज भी हुंजा इंडियन अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते हैं। वहाँ कोई बीमारी नहीं है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना ही वहाँ कोई केमिस्ट है और ना ही कोई हॉस्पिटल। जबकि पीमा इंडियंस को आज दुनिया का सबसे बीमार सिविलाइजेशन का खिताब मिला है। कारण यह है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एरिजोना में बसे पीमा इंडियन से उनकी ज़मीन अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह कहकर छीन लिया कि बदले में उन्हें आजीवन मुफ्त भोजन मिलेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भोजन के नाम पर पैक्ड फास्ट फूड का सप्लाई शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला कि लगभग 20 इयर्स में ही पीमा इंडियन का हर सदस्य भयंकर रूप से बीमार पड़ने लगा।
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर और ओबेसिटी जैसी बीमारी से पूरा पीमा इंडियन ग्रस्त हो गया। चाइना स्टडी के अनुसार ऐसी ही कुछ बीमार लोगों को लेकर उनकी डाइट को फिर से मोर देन 90% फल और कच्चा और बॉइल्ड वेजिटेबल कर दिया गया और साथ ही नमक, चीनी, मैदा और मिल्क पाउडर और साथ में रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। ये पाया गया महज 1.5 से 2 साल में ही सब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यानी कंक्लूजन ये है कि आप कितना ही सीरियस डिजीज से पीड़ित क्यों ना हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने डाइट को लगभग 90% रॉ प्लांट बेस्ड फूड करना होगा। और अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से पीड़ित नहीं हैं और आप जीवन भर हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट टोटल डाइट का 60% रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना होगा। चाइना स्टडी ये कंक्लूड करती है, फिलिंग द बॉडी विद अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड न्यूट्रिएंट्स इन इट्स नेचुरल स्टेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड लीड्स टू कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डिजीजेस। सिंपल भाषा में यह है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो 1.5 से 2 साल तक अगर आप 90% रॉ प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो आप अपनी खोई हुई सेहत वापस पा सकते हैं। इंसिडेंटली हुंजा के अलावा दुनिया में 6 और सिविलाइजेशन ऐसे हैं जहां आज भी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है और अक्सर लोग 100 वर्ष की आयु क्रॉस करते हैं। Some of the prominent similarities in all the 7 healthiest civilizations are: first, plant-based food consumption in raw and boiled form is about 90 to 95%. Second is sugar consumption nil, salt consumption almost nil, animal-based food consumption 1 to 5%, milk consumption very less, processed food consumption nil. द चाइना स्टडी की रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2003 में यह पब्लिश हुआ है कि रॉ डाइट कैन लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल बाय द सेम अमाउंट एज अ स्टैटिन कैन बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट अनलाइक स्टैटिन। ठीक इसी प्रकार द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2001 का रॉ फूड के बारे में यह कहना है कि द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ hip fracture. However, patients who changed the diet to raw moderately had 36% fewer hip fractures. American Heart Association Science Advisory ने ये कंक्लूड किया है कि it would be short-sightedness to not recognize the enormous public health benefit that the raw diet could confer. ठीक इसी प्रकार American Heart Association Science Advisory में यह भी पब्लिश हुआ है कि patient derive more than 2.5 times more benefit from eating raw diet than did similar patients taking cholesterol lowering statin drugs. अब सवाल यह है कि अगर डाइट को पूरी तरह से नेचुरल एंड अनकुक्ड रॉ करने से ही सारे डिजीज खत्म हो सकते हैं तो यह बात जनता से छुपाई क्यों जाती है? इस सवाल का जवाब ठीक वो समय जब मानव जानवर से इंसान बना, बाकी जीवों से अपनी एक अलग पहचान बनाई, मानव ने वीटग्रास से दोस्ती की। पहली बार मानव ने सिविलाइज्ड कॉलोनी में नींव रखी। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं कि वीटग्रास मानव के लिए एक अमृत के रूप में साबित हुआ। यही एक ऐसा पौधा है जिसमें वह सारे विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट ठीक उसी रेशियो में है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जस्ट परफेक्ट है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश ने धरती को आलासुर के प्रकोप से बचाने के लिए आलासुर को निगल लिया था तब उनके पेट में बहुत जलन पैदा हुआ। जब सारी देवी देवता अपनी सारी पावर लगाकर भी भगवान गणेश के पेट के जलन को कम ना कर पाए तब 8800 साधुओं ने मिलकर गणेश भगवान को घास का सेवन कराया और वह ठीक हो गए। वीटग्रास का जिक्र कई सारे ग्रंथों के साथ बाइबल में भी एज ए पेनेशिया ऑन अर्थ का रूप में है। लगभग 100 से ज़्यादा मेजर रिसर्च वर्क से यह साबित हो चुका है कि वीटग्रास जूस बॉडी में 3 तरह से काम करता है। फर्स्ट इज द क्लीनिंग वर्क। वीटग्रास जूस बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को निकालना और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन और प्यूरिफाई करना। फर्स्ट इज द क्लींजिंग वर्क। वीटग्रास जूस का पहला काम है क्लींजिंग। बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को वीटग्रास जूस निकालता है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन एंड प्यूरिफाई रखने में मदद करता है। टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए एक 15 साल बच्चे का कोलोन जो कि अक्सर फास्ट फूड खाता है।
कोलोन में आपने देखा कि किस प्रकार मल और टॉक्सिन कोलोन में चिपके हुए हैं और जो न केवल कोलोन को डैमेज कर रहे हैं बल्कि ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर कई तरह के बीमारियों का कारण बन रहे हैं। लगभग 90% बीमारियों का जन्म कोलोन के टॉक्सिन से ही होता है। 100 ml व्हीटग्रास जूस का एनीमा लेकर कोलोन में लगभग 15 मिनट्स अगर आप रखते हैं और नियमित रूप से हफ्ते में एक बार सुबह व्हीटग्रास एनीमा लेते हैं तो बहुत सारे बीमारियां खुद ब खुद गायब हो सकती है। व्हीटग्रास जूस का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना, जिसके लिए व्हीटग्रास जूस सबसे पहले बॉडी में विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को ठीक करता है। व्हीटग्रास जूस का थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है ऑर्गन डैमेज को हील करना और कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को अरेस्ट करके कैंसरस सेल्स को डोरमेंट एंड इनएक्टिव करना। अगर आप 90% प्लांट बेस्ड डाइट के साथ रोज लगभग 50 to 100 ml व्हीटग्रास जूस लेते हैं और हफ्ते में एक बार व्हीटग्रास एनीमा भी लेते हैं तो 3 to 6 मंथ्स में ही लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड डिजीजेस कनेक्टेड विद लो इम्यूनिटी से मुक्त हो सकते हैं। यह देखा गया है कि दुनिया के लगभग सारे कार्निवोरस एनिमल्स जब भी बीमार पड़ते हैं तब घास ही खाते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे डॉग, कैट, टाइगर, लायन घास का सेवन कर रहे हैं। कि टाइगर घास नहीं खाता है, पर सच तो यह है कि टाइगर भी घास खाता है जब वो बीमार पड़ता है। अब सबसे गहरी बात, आवर हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स वी आर ईटिंग एंड द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स is dependent on the health of the soil. Plants need over 30 different nutrients for its growth. These 30 different nutrients are present in soil in available and non-available form. Non-available form of the nutrients are converted into available form by the microorganism in the soil. Today's fertilizer culture has made soil free of microorganism, resulting in fruits and vegetables deficient of many nutrients. इंडियन साइंटिस्ट लेट प्रोफेसर श्रीपद दाभोलकर ने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया है जिससे आप घर पर ही 100 डेज में एक ऐसा फर्टाइल सॉइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग 500 वर्ष पुराने फॉरेस्ट सॉइल के बराबर होगी। प्रोफेसर दाभोलकर ने इस मिट्टी का नाम अमृत मिट्टी रखा है। ICRISAT के अनुसार The sample of Amrut Mitti has up to 100 million plant growth promoting microorganism per gram, highest ever measured in our lab. हील विदाउट पिल डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में मैं और मेरी पत्नी लेट प्रोफेसर दाभोलकर के असिस्टेंट डॉक्टर दीपक सुसदे से मिले और अमृत मिट्टी बनाने की ट्रेनिंग भी ली। अमृत मिट्टी के प्रभाव को देखने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि यह भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आविष्कार है और अगर अमृत मिट्टी को मास प्रोड्यूस किया जाए तो न केवल यह भारतीयों के हेल्थ में सुधार ला सकता है बल्कि भारत के इकोनॉमिक हेल्थ में भी एक बड़ा योगदान दे सकता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साइंस, कॉमर्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मेडिसिन, आई ट्रेवल्ड इंटरनेशनली एंड कंडक्टेड सेवरल हील विदाउट पिल वर्कशॉप्स and seen thousands of people reversing the lifestyle diseases just by changing to raw plant-based diet and wheatgrass juice. Here I am sharing some of the success stories and finally a message from Swami Ramdev ji who has inspired me to spread the knowledge of truth worldwide. I wish you a healthy, happy, long life. I am Surendranath Makhija. I am 63 years old and professionally I am a graduate engineer from IIT Kharagpur, working as a senior vice president in a company at Delhi now. Some 8 years back I was diagnosed of a serious ailment. It was a life-threatening situation. I was in a pretty bad situation at that time. It was solely because of the divine intervention of my Guruji that I was able to recover. But post-recovery, I was very weak. I had large number of related problems.
and someone suggested to me to use wheatgrass. So we started using wheatgrass initially on a trial basis, and we found that it did help me to enhance my energy levels. It also built up my immunity, and I was able to recover very fast. And since then, that means almost 8 years now, I am using wheatgrass on regular basis. Wherever I am, we try to locate a good source of wheatgrass. And I'm very happy that this company has found a very novel way of supplying wheatgrass in trays, which remains fresh as long as we are able to use it. व्हीट ग्रास को मैंने भी 90 डेज तक लगातार लिया. मुझे डायबिटीज़ थी और अब मैं विदाउट मेडिसिन डायबिटीज़ क्योर हो गई है और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा और मैं ठीक ठाक हूँ. मैं अरविंद धवन हूँ. मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन, और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी है इन एमपी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज. काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे बाएं साइड छाती पे और बाएं बाजू में ऊपरी हिस्से में सूजन होती थी और दर्द होती थी, और चलने पर काफ़ी दर्द होती थी. डॉक्टर ने जो दवाई दी, डायग्नोस किया था, कहते मस्कुलर पेन है, और 2 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ. दवाई खाता हूँ, आराम आता है, फिर शुरू जाता है. कभी कभी तो पेन दर्द दिन भर होती है. तो एक दिन मैंने ये व्हीट ग्रास की वैन देखी, मेरे घर के बाजू में खड़ी थी. मैंने देखा ये क्या चीज़ है, तो मैं सोचा इसको भी ट्राई किया जाए. तो एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था, तो ये वैन यहीं नीचे खड़ी थी. मुझे मालूम था कि ऑफिस ऊपर है, तो मैं ऊपर चला आया और तब से मैंने ये व्हीट ग्रास शुरू कर दिया है. और ये शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 2012. नतीजा ये है कि अब स्वेलिंग तो बिल्कुल गैप हो गई है, और दर्द जो कंटिन्यूस होती, लगातार होती थी, अब वो बीच बीच में होती है और काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद यही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. Good afternoon. My name is Lalit Raj Jain. Basically from 25 years I am in Bangalore. I am having running one handwriting academy in Sheshadripuram. That also one beautiful science. But last year when I saw one pamphlet, you can reverse your disease, heart disease, any. I can't believe how it's possible. I got heart attack 2 years, 6 months back. But 2 days they admitted in Narayana Hridayalaya. But I decided I don't want to go to operation and angioplasty. I have 100% one blockage and 2 is 80%. But I request doctor, can I go without any operation? He said that is left to you. That time I have some few positive mind in there. I came without operation to house, and whatever I have, some start doing. But that time, ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, that time God is not coming directly, He is sending somebody to front of us. So I met last year Biswarup Rai. I attend his seminar, and same day I attend, the next day I went and I start the technique using. That time I have every day 6 to 7 tablet and food style, and I am taking that care. But when this technique I start using, within 21 days, here whatever I am finding heaviness on my heart, completely gone. And now I can run 1 floor, 2 floor, 4 floor. I reduced my medication 6-7 tablet to now I am taking 3 tablet. But that also I have that belief and confidence. Within 3 months I am going to stop all medicine, not a single tablet, and 100% blockage came to 80.
80 came to 60, I have report also here with me. Bishurupraya said, you bring at least report. Somebody asked, no problem, I have that report. And that technique I use, my mother, 72-year-old, she have diabetic last from 7 or 8 years. Every day we are giving insulin. And after some medicine also there, per day 2-3 tablet. And when I start this using technique, within 10-15 days, we are stopped insulin. And last 3 months, continue, we are using this technique. Today, I am giving only 1 tablet, but that tablet also going to stop within another 1 or 2 months. So this miracle, I am saying miracle, definitely my heart. And when I use this technique, not only heart is become very good, all right, heaviness is over. But you can't believe, my hair falling is lot of hair falling that time. And when I use this technique, within 3 months, now I have 7 months over that technique. 3 months, totally my hair falling stopped. Sometime I am searching not a one hair in my bathroom. Before I have 40-50 hair. That is surprise. And new hair growth in my mind. You can see that. And 60 to 70% hair is white. Now 50% hair white to black. This happened with me. This is technique. At least I need clap because of this gentleman. Really I appreciate. God is sent in my life. That is my U-turn in my life. Thank you, all of you.